Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all of you. How are you? Hope you are fine. Today's our topic is Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is the form of conduct rules that when we making a when we constructing a test during construction of the test, we follow the taxonomy of educational objectives. It is called Bloom's taxonomy. So in the construction of tests, we consider the taxonomy of educational objectives, it measuring the learning outcomes of students. ये जो आपने ये इसके बारे में सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो इसके बारे में काफ़ी जो एजुकेशनल लाइन में और टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको अगर टेस्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है एज अ टीचर आपने आगे अपने प्रोफेशन को बिल्डअप करना है तो आपको इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से काफ़ी हद तक वास्ता पड़ेगा। ठीक है, और इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आप समझे पूरे टीचिंग आपकी जो टीचिंग लाइन है और टीचिंग प्रोफेशन है उसके अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक अहम और इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ये है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स एक क्या था? ब्लूम्स एक साइंटिस्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के जो रूल्स कंडीशंस एंड टैक्सोनॉमी उसको तरतीब दी है। ठीक है, उसका भी आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। Let us discuss about the taxonomy. Meaning of taxonomy. What is the meaning? Bloom is the scientist, name of scientist. Taxonomy is the Greek word, comes from Greek word tax, arrangement, and nomos, science. Science of arrangement. Taxonomy is science of arrangement. Means a set of classification principles, rules and regulation, structure and domain. Simply means category in which we divide the different domains of test construction. We classify the principles in this taxonomy. Who is Benjamin Bloom? बेंजामिन ब्लूम कौन था? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम was a Jewish American educational psychologist. Contribution, classification of education objectives, और इसके अलावा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग 19 Feb 1913 to September 1999। और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया है, डेवलप किया गया है, वो 1965 में किया गया है। देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट three domains of Bloom's taxonomy, three domains of educational objectives. We also said it. Number one domain is cognitive domain, in which we study about the mental skills, knowledge, about uh, mentality of intellectuality of student. We measure the mental skills of students. In we said that cognitive domain is knowing head. It is start from the head, mindset. इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं इसको, कॉग्निटिव को। साइकोमोटर डोमेन, डूइंग हैंड। साइकोमोटर मतलब फिजिकल, मैनुअल फिजिकल स्किल्स जो हम फिजिकली अंजाम देते हैं, उस डोमेन की
जो स्टडी है इसको हम साइको डोमेन कहेंगे, साइकोमोटर डोमेन कहेंगे। ठीक है, फिजिकली जो भी एक्शन, फिजिकली वर्कआउट जो करते हैं हम, उन तमाम चीज़ों को हम साइकोमोटर डोमेन में इंक्लूड करेंगे। इसको हम डूइंग हेड, डूइंग और हैंड, ठीक है, जिससे हम काम करते हैं हैंड। अफेक्टिव नेक्स्ट एंड नंबर 3 इज affective domain. Affective means feelings, heart, is related to the heart, feelings, growth in feelings or emotional areas, attitudes. We can also say that 3H, educational Bloom's taxonomy describe the 3H of the human being. 3H, head, hand and heart. Okay. In our course, the topic is related to our course is a cognitive domain. Okay. तो हम कॉग्निटिव डोमेन को ही हम स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसको साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन को भी टच करते हुए जाएंगे। कॉग्निटिव डोमेन, देयर इज 6 category of cognitive domain. Knowledge, comprehension means understanding, application, analysis, synthesis and evaluation. Psychomotor domain, reflex movement, basic fundamental movements, perceptual abilities, physical abilities, skilled movement, non-discursive movements, affective domain, receiving, responding, valuing, organization, characterization. Okay. Now we discuss about the Bloom's taxonomy of objectives in the cognitive domain. जैसा कि मैं आपको बताया यहाँ कि कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो वो क्या ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पेश करते हैं, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स को मेजर्स करते हैं। जब हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं या पेपर जो हम एग्जाम टेस्ट पेपर बनाते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं इन द एंड ऑफ सेशन, then we focus on these Bloom's taxonomy. We discuss it like a triangle, step by step: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. These are the steps and category domain of cognitive domain of educational objectives. Knowledge, comprehension. Knowledge means any question about the knowledge base, remembering based. For example, we said the define motivation. मोटिवेशन को डिफाइन करना तो नॉलेज बेस है। कॉम्प्रहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, जो ये नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन और एप्लीकेशन, ये 3 स्टेप जो है शुरू के, वो कहलाते हैं लोअर थिंकिंग ऑर्डर। क्या कहलाते हैं? लोअर थिंकिंग ऑर्डर। इसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन को कहलाते हैं हायर थिंकिंग ऑर्डर। जो शुरू के जो नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन है, ये 3 जो स्टेप्स हैं, ये हम इसमें हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन 3 कैटेगरीज को हम इन 3 कैटेगरीज पे हम काम करते हैं। ठीक है, इनको हम इन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, when we develop the objective type test means हम इसको मजीद इसको डिस्कस करेंगे आगे।
फिर भी आपको इशारा कहता चलूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मीन्स लाइक MCQs, fill the blanks, match क्वेश्चन आइटम्स एंड कंप्लीशन आइटम, खाली जगह जिसे कहते हैं, खाली जगह जो मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और फिल द ब्लैंक्स है, MCQs है, मल्टीपल चॉइस, दिस ऑल कैटेगरीज काउंट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, okay. And on the other hand, the upper, the higher thinking order, analysis, synthesis, evaluation, it includes in essay type questions, in which we ask the question from the student in details, and डिस्क्रिप्शन, ओके। तो ऐसे टाइप जो टेस्ट हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इन ऊपर के जो 3 जो हायर थिंकिंग ऑर्डर है, इनके बिहाफ पर, इस बेसिस पर हम एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन के बेसिस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट, देयर आर 2 टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप टेस्ट एंड ऐसे टाइप टेस्ट, ठीक है। हम इसको आगे और मज़ीद स्क्रैप करेंगे। अच्छा, अब आ जाए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो फर्स्ट जो आया था 1956, कभी उसको हम 1965 भी कह सकते हैं, 1956, इन दोनों के दरमियान ये कॉग्निटिव डोमेन डेवलप हुआ है। और इसके अलावा जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन है, ये रिवाइज भी हुआ है, इसका न्यू वर्जन भी आया है, ठीक है। न्यू वर्जन क्या, थोड़ा सा बस इसको थोड़ी सी इसमें वर्डिंग में चेंजिंग हुई है, बाकी मीनिंग और इसका जो वर्कआउट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। द कॉग्निटिव डोमेन 2001, इन 2001 रिवाइज्ड मॉडल इज कंस्ट्रक्ट। इसमें हम देखेंगे नॉलेज की जगह क्या आ गया, रिमेंबरिंग आ गया। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वही रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए, बात एक ही हो गई। कॉम्प्रहेंशन की जगह क्या, अंडरस्टैंडिंग आ गई। एप्लीकेशन की जगह अप्लाइंग, जो चीज़ हम किसी चीज़ के जो एप्लीकेशन को मालूम, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन आवर सोसाइटी, क्या है वो हम इसको बताते हैं। अच्छा, एनालिसिस, एनालाइजिंग है, एवल्यूएटिंग है, क्रिएटिंग, ठीक है। सिंथेसिस को हटा के एनालाइजिंग कर दिया, और एवल्यूएटिंग फिर क्रिएटिंग कर दिया। ये रिवाइज, जो आपके रिवाइज जो टैक्सोनॉमी है वो ये है। अच्छा, ओरिजिनल टैक्सोनॉमी 1956 में और रिवाइज 2001 में, ये आपने याद रखना है। इन दोनों डिफरेंस क्या है ये आप देखेंगे भी। नॉलेज एंड रिमेंबरिंग दिस ऑल सेम। कॉम्प्रहेंशन में, पुराने में कॉम्प्रहेंशन था, नए में अंडरस्टैंडिंग आ गया। एप्लीकेशन पुराने में था, ओल्ड में था, न्यू में क्या है, अप्लाइंग आ गया। ओल्ड में एनालिसिस था, न्यू में एनालाइजिंग आ गया। अब जो चेंजिंग आई है, जो डिफ्रेंशिएट हुआ है, वो इसमें हुआ अपर 2 कैटेगरीज में हुआ। सिंथेसिस चला गया टॉप पर, और न्यू में, और जो ओल्ड में एवेल्यूएशन था वो क्या गया, सेकंड लास्ट पे चली गई, ठीक है। हायर, बाकी जो चीज़ें लोअर थिंकिंग ऑर्डर एंड हायर थिंकिंग ऑर्डर वो सेम ही। अब देखिए यहाँ भी इसको डिटेल में दिए गए। नॉलेज, रिमेंबर, आई नो, अंडरस्टैंड, आई कॉम्प्रहेंड, अप्लाई, आई कैन यूज इट, यूज ऑफ एनीथिंग। लॉजिक, कैन एनालाइज लॉजिक, इट, आई कैन बी लॉजिकल, लॉजिकल क्वेश्चंस बेस होते हैं। एवोल्यूशन, जजमेंटल क्वेश्चन बेस, जो हम क्वेश्चन देते हैं। क्रिएट, जो हम अपने माइंड से क्रिएट करते हैं, को प्लानिंग, हमने प्लानिंग बेस्ड, जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो हम देते हैं वो क्रिएट में आते हैं। अब आ जाए, हम न्यू वर्जन को डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी, रिमेंबरिंग, रिकॉल प्रीवियस लर्निंग इंफॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस include in the remembering category. Recalling relevant knowledge from long term memory,
जिस तरह इसको ये कह सकते हैं कि बानी पाकिस्तान कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो क्या ये नॉलेज बेस है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अंडरस्टैंडिंग बेस, एक मिनट, अच्छा वो आखिर में पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बताएंगे कि इसमें सवाल किस तरह आते हैं। ठीक है, ये मैं देख रहा जरा देखना चाह रहा था। अच्छा अब रिवाइज जो एग्जाम अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कहेंगे कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेशन, interpolation and interpretation of instructions and problem, state a problem in one's own word। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन तो मैथ्स के सवाल हो गए, ठीक है, या ऐसा कोई सवाल हो जो हम इसमें स्टूडेंट को थोड़ा सोचने का, मतलब को सोचना पड़े उस सवाल में, थिंकिंग अपना थिंकिंग माइंड है, अंडरस्टैंडिंग माइंड, उसको रन करना पड़े स्टूडेंट्स को, तो वो तमाम जो कैटेगरी क्वेश्चन आएंगे अंडरस्टैंडिंग बेस में आएंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, तो कॉम्प्रहेंशन में जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नंबर 3 अप्लाइंग application based, breaking the concept into parts and understand how each part is related to one another, use of anything analysis, breaking the concept into parts and understand how each part is related to one another। ये सेम हो गया, इसमें ये अप्लाइंग में ये नहीं आएगा। अप्लाइंग में ये है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस एक्वायर्ड नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन इन अ सेटिंग और ऑर्डर दैट वाज यूज्ड इन लर्निंग। ठीक है, जो आप जो जो लर्निंग में यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ यूजेस ऑफ मोबाइल्स हो गया, ये एप्लीकेशन सवाल है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन सवाल है। ठीक है, एंड टीचिंग प्रैक्टिकम, ये एप्लीकेशन सवाल है। ठीक है, जो प्रैक्टिकली वर्क जो होता है वो तमाम एप्लीकेशन स्मार्ट है। ठीक है, एनालिसिस में कौन सवाल आता है, जो जिसमें हम क्या करना पड़ता है, ब्रेकिंग इनटू, एनालिसिस का मतलब है ब्रेकिंग द कॉन्सेप्ट इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ ईच पार्ट इज रिलेटेड टू द वन अनदर। फैक्ट्स एंड फिगर जो है, लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन हो गया, किसी डायग्राम से किसी बात को हमें स्टूडेंट को वाजे करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो किसी चीज़ का, तो वो तमाम चीज़ें इसमें एनालिसिस में होते हैं, डिफ्रेंशिएशन वगैरह। एवेल्युएटिंग, मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड द वैल्यू ऑफ आइडियाज और मटेरियल्स। ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन जो हम जजमेंटल के तौर पर स्टूडेंट से क्वेश्चन करें। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स जजमेंट फॉर्म द वैल्यू ऑफ व्हाट मेथड्स आइडियाज। ठीक है, तो स्टूडेंट अपने जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसके मुताबिक जो क्वेश्चन दिया गया है उसको जजमेंटल तौर पर उसको आंसर दें, जस्टिफाई करें। मिसाल से क्वेश्चन दिया हुआ उसको जस्टिफाई करना हो, ठीक है, अपने डेली लाइफ रूटीन, डेली लाइफ जो ऑब्जर्वेशन उसे जस्टिफाई करना हो, या कोई थ्योरी थी उसको जस्टिफाई करना हो। ठीक है, या ऐसा कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो जिसमें हम क्या करें, क्रिटिसाइज करो, सपोर्ट करो, कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
कंक्लूड कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, तो वो सब इवैल्यूएटिंग में आएंगे। एंड द लास्ट इज क्रिएटिंग रिवाइज टेक्सोनोमी। लास्ट क्या, लास्ट जो है ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनोमी, लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है क्रिएटिंग। बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स but parts together to form a whole, with emphasis on creating a new meaning of structure, putting information together in an innovative way। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या हमें रिक्रिएशन वाले क्वेश्चन जो हम देते हैं स्टूडेंट्स को, वो तमाम इसमें क्रिएटिंग में आते हैं कैटेगरी में। ये आप देख सकते हैं, आई पेडागोजिकल फील, आई पेडागोजी फील है। Remembering, understanding, apply, analysis, analyze, evaluate, create। अच्छा जनाब, now we discuss about the verbs we use in our remembering type questions। ऐसे क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड है उसमें हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस में, कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के लिए। Remembering, I know, knowledge based questions, we use appropriate verbs like choose, describe, define, identify, label, list the teaching methods, locate, match, memorize, name, omit, recite, recognize, select, state, underline. These are the verbs we ask from the students in our questions based of based on knowledge and remembering। Okay, remember I know, प्रोडक्ट्स में आ जाए। ये प्रोडक्ट्स अगर कोई हो, कौन कौन प्रोडक्ट में हम रिमेम्बरिंग, चार्ट्स और मॉडल्स हो गए, वर्कशीट, ड्रॉ अ मैप, पिक्चर, डेमोस्ट्रेशन, ग्राफ्स। ठीक है, ये तमाम प्रोडक्ट जो है वो रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चंस में हम शामिल करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स की सूरत में हम इसको जो रिमेम्बरिंग क्वेश्चन को हम आस्क कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन के सूरत में वर्कशीट देके रिमेम्बरिंग क्वेश्चन। आई नो, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, मॉडल क्वेश्चन आपके सामने, हाईलाइटिंग, रिहर्सल, मेमोराइजिंग, मेनिमोनिक्स, हु, वेयर, विच, वन, व्हाट, हाउ। ये तमाम क्वेश्चन के नॉलेज बेस में आएंगे, रिमेम्बरिंग में आएंगे। व्हाट इज द बेस्ट वन, व्हाई, हाउ मच, व्हेन, व्हाट डज इट मीन्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के आई कॉम्प्रहेंड, कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, मेंटल लेवल चेक। Appropriate verbs we use when we construct the understanding based questions, we use the appropriate verbs like classify, defend, communicate, demonstrate, distinguish, explain, express, extend, give example, illustrate, indicate, interrelate, report, interpret, infer, judge, match, paraphrase, represent, restate, rewriting, rewrite, select, interpret. These are the verbs we use in the understanding based questions। Okay, I comprehend, जैसा आप देख रहे हैं वाटर पेपर हो गया, रेन एंड शेडो में कन्वर्ट होता है, सनलाइट से वापर वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं, फिर वो जाके क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं, फिर बादल की शक्ल में रेन फॉल होते हैं, स्नोफॉल होते हैं, फिर इन फर्टिलाइजेशन में जाते हैं, फिर ग्राउंड वाटर। इस तरह पूरा प्रोसेस है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। इसमें भी एक चार्ट मॉडल के थ्रू मेकिंग अ फिल्म स्ट्रिप वर्कशीट ड्रॉ मैप, ये
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो है मेथड ऑफ क्वेश्चन है, किस तरह हम क्वेश्चन बनाने दे सकते हैं हम स्टूडेंट्स को। आई कॉम्प्रहेंड अंडरस्टैंडिंग बेस कॉम्प्रहेंशन बेस। अब इसमें एग्जांपल्स आप देखें, मॉडल क्वेश्चन दिए हुए, इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटेजीज है वो भी आपको सामने नजर आ रही होंगी। की एग्जांपल्स क्वेश्चन हम अगर देना है अंडरस्टैंडिंग, तो की एग्जांपल्स अगर हम पूछें इनसे, emphasize connection to things, to object connections, to terms का connections हम पूछ सकते हैं। elaborate concepts, summarize, state model question, state in your own words which are facts. These type of questions including understanding base. What does this means? Is this the same as? Give example. Okay. अच्छा, select the what does this means in this in this, is this the same as? Give an example. ये सवाल होता है कि हम मीनिंग पूछते हैं और पूछने का क्या ये चीज़ सेम है इस ऑब्जेक्ट से है, तो कोई एग्जांपल दें। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स, इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट डेफिनेशन, स्टेट इन वन वर्ड, explain what is happening. This type of the question including understanding base. Cognitive domain, apply जो क्वेश्चन है, I can use it, is in this type of question we use appropriate verbs like apply, choose, practice, solve, illustrate, conduct, classify, employ, dramatize, explain, generalize, judge, organize, paint, prepare, produce, select, show, sketch, solve, use, construct, investigate, restructure, manipulate. These are the words we use during the construction of apply and application type questions. Okay, very easy. I can use it products survey के थ्रू हम कर सकते हैं एप्लीकेशन, डायरी, स्क्रैप बुक, फोटोग्राफ, कार्टून, लर्निंग सेंटर, इलिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, स्क्रैप्चर के थ्रू भी हम एप्लीकेशन को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को जस्ट असेसमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन को। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, मॉडलिंग, कॉग्निटिव, mindful practice, not just a routine or practice. रूटीन प्रैक्टिस ना, पर माइंडफुल प्रैक्टिस हो किसी चीज़ की। पार्ट एंड होल सीक्वेंसेस, ऑथेंटिक सिचुएशन, कोस्ट प्रैक्टिस, केस स्टडीज, simulations, algorithm. The question types like predict what would happen if, choose the best statements that apply। इस तरह के सवाल आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। जज द इफेक्ट्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये सवाल आ सकता है। व्हाट वुड रिजल्ट, टेल व्हाट would happen, tell how, when, and where, why, each type question, tell how much change there would be, and identify the results of this, all including the apply application type question. Number 4 is analyze. It can be logical based questions. 1990, no calculators allowed. Okay, question analyze. 2020 में no global glasses allowed. Appropriate verbs जो हम यूज करते हैं वो क्या है? Analyze, categorize, classify, compare, differentiate, question, distinguish, identify, infer, point out, select, subdivide, survey, contrast, categorize, debate, examine, deduce. These are the verbs we use during the preparation and construction of
एनालाइज बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। जब हम कोई लॉजिकल क्वेश्चन बना रहे हो तो हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। आई कैन बी लॉजिकल, ग्राफ की सूरत में, प्रोडक्ट्स, सर्वे, फैमिली ट्री, timeline, questionnaire, commercial diagram, chart, report, fact file. These all the type products that we can just assist the logical based questions. इंस्ट्रक्शनल क्वेश्चन किस तरह आते हैं एनालिसिस के? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होगी? मॉडल्स ऑफ थिंकिंग, चैलेंजिंग assumptions, risk, retrospective analysis, reflection through journaling, debates, discussion, and other collaborating and learning activities, decision making situation। या डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है या कोई कोलेबरेटिव लर्निंग टाइप सवाल क्वेश्चन है, डिस्कशन क्वेश्चन है, वो तमाम इसमें इस स्ट्रेटजी इंस्ट्रक्शनल स्टडीज में इस जो ये तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें हम आस्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन, what is function of this all of the analysis, what's fact, opinion, what assumptions, what statement is relevant, what motive is there, type question होता है। Related to extraneous, not not extraneous to not applicable, what conclusions, even how we conclude the of scenario of motivation, motivational theories, conclusion कैसे करेंगे वो हम सवाल ऐसे कर सकते हैं। what does the author believe, what does the author assume, what does the author believe in the management class, in the theory of classroom management, क्या author believe करते हैं? Then what is the assumption of the author, make the distinction। Number 5 is new version of cognitive domain education objective is evaluate। evaluate evaluation से निकला है I can judge, judgmental type question जो होते हैं इसमें आते हैं। appropriate verbs we use in the evaluation type questions: price, judge, criticize, defend, estimate, compare, measure, verify, justify, select, decide, choose, recommend, assist, critique, revise, validate, standardize, argue, rate, measure. This type of words we use in the evaluation type based questions. Product self evaluation, survey, editorial experiment, panel evaluation, recommendation. We give the recommendation in any research, answers questions. Okay, conclusion, court trial, essay, letter. These are the used for the evaluation based question। एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है ये इसमें आते हैं। एवल्यूशन में आई कैन जज, इंस्ट्रक्शनल स्टडीज क्या है, चैलेंजिंग असम्पशन, जर्नलिंग, डिबेट्स वगैरह जो होते हैं, क्वेश्चन डिबेटिव क्वेश्चन होते हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्कशंस, व्हाट व्हाट आर क्वेश्चन, कंसिस्टेंसीज, इनकंसिस्टेंसी अकेयर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मोरल, बेटर, लॉजिकल, वैलिड, अप्रोप्रिएट, फाइंड द एरर। तमाम जो क्वेश्चन है वो एवल्यूशन वास्ते हैं। पीरियड आई कैन प्लान, जो आपका कंस्ट्रक्शन है, क्रिएशन है, डिज़ाइन है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है वो तमाम इसमें आते हैं। हाइपोथेसिस वगैरह, imagination of the role play, production, planning. This type of questions include in the create in the new version and the last of the least.
In old version of the cognitive domain, last category is evaluation. The new version is the create. Category is create. I can play. I prepared in this category create. We when we construct the test, we should follow these appropriate verbs. Choose, combine, compose, construct, create, design, manage, develop, do, improve, formulate, hypothe- hypothe- hypothesis, hypothesize, invent, make up, originate, organize, plan, imagine, produce, role play and tell. These are आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन जो आपने देखा होगा कि एक सिनेरियो दिया हुआ होता है पैराग्राफ में और उस सिनेरियो पे क्या करना होता है कहानी लिखनी होती है या उस कहानी को मुकम्मल करना होता है या उस कहानी का उस पैराग्राफ टाइटल देना होता है और उसको मज़ीद एंड तक उस स्टोरी को लेकर जाना होता है वो तमाम चीज़ें इस पीरियड में आएंगी आई प्लान प्रोडक्ट स्टोरी प्लान मैंने कहा स्टोरी पोएम टाइप में क्वेश्चन दे सकते हैं प्ले रेडियो शो puppet शो न्यूज़ आर्टिकल इन्वेंशन डांस म्यूरल कॉमिक स्ट्रिप रेसिप पेंटोमीम तो ये तमाम जो है वे ऑफ क्वेश्चनिंग है फॉर द क्रिएट बेस्ड क्वेश्चन अच्छा भाई अब आ जाए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में मॉडलिंग मॉडल्स वगैरह होते हैं चैलेंजिंग assumption रिफ्लेक्शन थ्रू जनरलिंग डिस्कशन एंड अदर कोलिब्रेटिंग लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन डिसीजन मेकिंग सिचुएशन द क्वेश्चन इंक्लूड इन दिस टाइप फॉर एग्जांपल मॉडल क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट किस तरह टेस्ट किया हाउ वुड यू टेस्ट द gravitational force टेस्ट किया propose an alternative solve the following how else would you state a rule this type of question including the creative how can we develop the habit of asking higher order questions how can we develop the अच्छा ये जो हमारा एजुकेशनल कॉग्निटिव डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज द कंप्लीट जो 6 जो कैटेगरीज हैं नॉलेज जिससे हम और में नॉलेज है न्यू में क्या है रिमेंबरिंग नंबर 2 है और में कंप्रहेंशन है न्यू में न्यू वर्जन जो है ब्लूम कैटेगरी का इसमें क्या है अंडरस्टैंडिंग है नंबर 3 क्या है और में एप्लीकेशन है न्यू में अप्लाई है नंबर 4 क्या है और में साइंटिफिक है और में एनालिसिस है और न्यू में क्या एनालाइजिंग है और ओल्ड में साइंटिफिक है 5 पर और न्यू में क्या एवल्यूएट ठीक एवल्यूएटिंग है एवल्यूएशन है और नंबर 6 में जो ओल्ड में टेक्सोनॉमी में वो क्या है एवल्यूएशन और न्यू में वो क्या है क्रिएटिंग बेस्ड क्वेश्चन ओके and how can we develop the habit of asking higher order questions कैसे हम डेवलप हैबिट हम पूछेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग ऐसे टाइप क्वेश्चन अवॉइड लिटरल लेवल क्वेश्चन इन फेवर ऑफ दोस रिक्वायरिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग लिटरल लेवल क्वेश्चन आप पूछने छोड़ दें हायर एजुकेशन क्वेश्चन जब आप हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन करते हैं तो जो ऑब्वियस टाइप जो ऑब्वियस आंसर जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आप ना करें जिस तरह व्हाट इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ये सबको पता है काजी मोहम्मद जिन्ना है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड नहीं होगा ठीक है सब जो आम तौर सबको पता है वो सर सवाल ना करे तो बेहतर होगा अगर आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन एक्सपीरियंस करने हो वो अगर ये आपको आउटकम चाहिए हायर ऑर्डर थिंकिंग
को आप मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो आपको इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। ठीक है, जो नंबर 3 है, यूज क्वेश्चन रिक्वायरिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग। जो क्वेश्चन जो हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिस तरह एनालिसिस के क्वेश्चन हो गए, क्रिएशन के हो गए, एवल्यूशन के हो गए, सिंथेसिस के हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने इलस्ट्रेट द डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये आप कर सकते हैं, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में आएगा। क्लासिफाइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ थिंकिंग required for students to respond, classifying classifying according to the kinds of thinking required for students to respond. Use Bloom's taxonomy of thinking. Use करें आप। Teachers should make sure their question can be classified as application, analysis, synthesis and evaluation. Okay. हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए ये 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज आपने ट्राई करनी है। हाउ कैन वी डेवलप द हैबिट ऑफ आस्किंग हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये अब आगे चल रहा है। यूज वर्ड्स एसोसिएटेड विद हायर, ये तमाम चीज़ें तो पड़ी हुई है, वो वर्ड इस्तेमाल करें जो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल में होती है। इस तरह वर्ब्स हैं कि डेवलप करना, प्रिपेयर, यूज, इलस्ट्रेट, ब्रेक डाउन, डिस्टिंग्विश एंड डिज़ाइन, कंपाइल, फॉर्मुलेट, एनालाइज, rewrite, justify, support, criticize. These are the words we use, words we use in the high order thinking questions. High order questions words representing cognitive task in Bloom taxonomy, यही मैंने अभी आपको बताया, जो अभी आपको मैंने बताया वही वर्ड्स हैं। ठीक है, कंसिडर द लर्निंग प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद, consider the learning products associated with learning order thinking task orientation, construction, wheel, ये आपको यूज करना है। इफेक्टिव क्वेश्चन टेक्निक्स क्या है। पोज द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आस्किंग अ स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड। पोज द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आस्किंग आर स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड। वैसे सवाल जो स्टूडेंट आप समझते हैं कि स्टूडेंट ने नहीं किए, वो आप स्टूडेंट से करें तो बेहतर है। Allow plenty of think time by waiting at least 7-10 seconds before expecting the students to respond. ऐसे सवाल लेने आपने कि स्टूडेंट 7 से 10 मिनट 10 सेकेंड उसको थिंकिंग टाइम में उसको लगाए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जब उसको देखें तो 7 से 10 सेकेंड सोचने में अपना टाइम लगाए, है ना। ठग से उनको कहेंगे भाई शायर मशीर कौन है, ठीक है, तो ठग से उसको पता है कि अल्लामा इकबाल, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, सबको पता है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो थिंकिंग टाइम आपने कैलकुलेट करना है, रखना है कि स्टूडेंट सोचे इस सवाल को। मेक श्योर यू गिव ऑल स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड अदर देन रिलाई ऑन वॉलंटियर्स। आपने देखना है कि ठीक है, ऐसा सवाल लेना है कि सब स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, होल्ड स्टूडेंट्स अकाउंटेबल, hold students accountable by expecting, requiring and facilitating their participation and contribution। अपनी कंट्रीब्यूशन और जो फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन वो पेपर में उनको नज़र आए टीचर को। ठीक है, इस्टेब्लिश अ सेफ एटमोसफियर फॉर रिस्क टेकिंग बाय गाइडिंग स्टूडेंट्स। रिस्क एटमोसफियर भी आपने देखना है स्टूडेंट्स के। एंड इस्टेब्लिश अ सेफ एटमोसफियर फॉर रिस्क टेकिंग बाय गाइडिंग स्टूडेंट्स। जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको पता हो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से और इसके अलावा जो एटमोसफियर के हिसाब से, कोर्स आउटलाइन के हिसाब से आपने स्टूडेंट को गाइडलाइन करने हैं,
हिसाब से आपने उसको फैसिलिटेट करना है। ये हमारा टॉपिक यहाँ एंड हो गया। अगर कोई सवाल है किसी को, वो सवाल पूछ सकते हैं और अटेंडेंस इसी की लगेगी जो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल होंगे, आपको जवाब मिल जाएंगे। तो लाजमी इसके अलावा आप खुद भी इंटरनेट से सर्च करके पढ़ सकती हैं। बहुत सारा मवाद, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप उसको मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।